morning and welcome to your channel Edu Bharat Expert. In continuation of Python learning, this is the second series, and in this series we will tell you Python tokens, that is smallest unit of Python program, and the tokens are keywords, identifier, literals, operators and punctuators. So first we will start the keywords. Keywords are the reserved word which is specifically used by the language. यहाँ हम करेंगे आज आइडेंटिफायर जो होते हैं वो नेम फॉर होते हैं आपके मॉड्यूल्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स एंड डिक्शनरी लिस्ट, और वी कैन से स्पेसिफिकली द आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स फॉर फर्स्ट वेरिएबल्स, मॉड्यूल्स, फंक्शन, क्लास एक्सेट्रा. सो यहाँ पे हम करेंगे आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स भी होते हैं. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस उसमें देखा, अगर आपको नहीं पता आप चेक कर लीजिए, जिसमें अंडरस्कोर ले सकते हैं और लेटर से स्टार्ट होता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है. और पाइथन में जैसे कैरेक्टर सेट में बताया 0 to 9 डिजिट्स वी कैन यूज, अल्फाबेट्स स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z यूज. पाइथन इस केस सेंसिटिव लैंग्वेज आपको पता है, बता चुकी हूँ प्रीवियस उसमें. यहाँ हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेट विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइडेंटिफायर में कॉन्सेंट्रेट करेंगे. सो फर्स्ट हम देखते हैं, सपोज मैंने दिया x इज इक्वल टू 10. ठीक है, हम कर चुके हैं. वी राइट x इज इक्वल टू 10. वेट, ओके. So here we write x is equal to 10. So this is the integer value we are storing in x, or we can write a is equal to 12.5, or we can write b is equal to Python, Python. Okay, so these are the type. The first we have stored the integer value, that is without decimal, and x is a variable. In second a variable we have stored the float value, and in third, that is b, we have stored the Python, that is string. Okay, so we can check, already we have done this. Now the next, if I write x already have taken, so I can take here the z b n, I have just given the name. Okay, or we can write a b c is equal to 23. This is also right. Why? Because I have not used any special character in between a, b and c. Okay, and dot we cannot use, and underscore we can use in between this. We can write this also, a underscore b underscore c is equal to 67. This also we can write. Okay, but this is the one variable. If I write the space, this will be wrong. Okay, and now I can, this is the single variable, we can store the single value. We can store the multiple value also. Suppose a already we have taken. A, we cannot take the a, we can take the d. I have not taken, so we can write d, e and f. Okay, this is equal to 2, 3 and 4. So these are the variable we have taken to store. Now we use the print statement. Okay, or we can say the print function. The print is the function, so we write the parenthesis we have to use, and now I write x. You can see the 10 will print. If I write the print, I can write here print a, then 12.3 will be print. We can just write the b, so we can see Python will print. Now if I write print, and we can write a b c, this is one variable, don't be confused, this is another variable. A b c, the three letters, but without separating this value, so that's why the number 23 will be print, and the variable name a b c. Okay, and if I write print a we have taken underscore b and c, this is also one variable, so the value that is 67. ठीक है, तो let me explain you. आइडेंटिफायर नेम मैंने बताया, आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं. दिस इज द नेम फॉर द क्लास, फंक्शन, मॉड्यूल्स और वेरिएबल्स. ओके, सो वेरिएबल्स के आपके नेम होते हैं, इट विल बी स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर, इट विल नॉट स्टार्ट विद द डिजिट. डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक आपका नेम जो होता है डिजिट से नहीं होता है. ठीक है, और नेम का आप ये कह सकते हैं कुछ निक नेम हो गए. ठीक है, जैसे आपका निक नेम होता है तो आपके फैमिली के लोग या बहुत क्लोज लोग जानते हैं. ठीक है, तो और अगर हम आपका जो
पूरा नेम होता है, सरनेम जो आपका फुल नेम होता है वो ऑफिशियली आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये लेके चलते हैं, जैसे सपोज हमने किया आपका ए बी और सिंगल यूज़ किया हमने, वी कैन राइट द नेम, ई नेम, इस तरह से आप कुछ भी दे सकते हैं बट मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपका दिया रेडियस, तो RADIUS मैं पूरा भी दे सकती हूँ रेडियस, और वी कैन राइट R फर्स्ट लेटर ऑफ दिस ऑल्सो, वी कैन राइट 4.5 एंड वी कैन प्रिंट इट PRINT प्रिंट। तो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट व्हाट, तो यहाँ पे आपका प्रिंट होगा रेडियस RADIUS। तो इस तरह से जो भी आपको वैल्यू चाहिए आप इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। और तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, वेरिएबल दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल और वैल्यू स्टोर की है, और प्रिंट फंक्शन आपने यूज़ किया है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे सपोज करना है, इनपुट स्टेटमेंट मैं ले रही हूँ, सपोज मैंने दिया INPUT इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया व्हाट इज़ योर नेम, नहीं प्रिंट, अभी इसके पहले हम पहले प्रिंट लेते हैं। सो प्रिंट में अभी एक और यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन में फर्स्ट हमने लिया प्रिंट में वेलकम इन पाइथन क्लास, PYTHON पाइथन क्लास, ठीक है। तो ये भी हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग आपका। अगर मैंने यहाँ पे दिया टाइप, आई कैन जस्ट चेक इट टाइप, और मैंने यहाँ पे चेक किया आपका बी, टाइप बी, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, दिस इज द क्लास स्ट्रिंग। सो वेलकम इन पाइथन क्लास, दिस इज द प्रिंट। अच्छा, एक लाइन में भी हम दे सकते हैं प्रिंट को, और हम यूजिंग इस तरह से भी दे सकते हैं, PRINT प्रिंट, हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। सपोज आई राइट हियर WELCOME वेलकम, और वेलकम के बाद मैं यहाँ लगा देती हूँ आई हैव रिटन द वेलकम हियर, ठीक है। अब सपोज आई वांट टू राइट इन द नेक्स्ट लाइन, सो हाउ कैन वी राइट इन द नेक्स्ट लाइन, so that is we can write it, don't close it, and we can give it here the slash, and we can write here, एंटर किया मैंने, कर्सर आपका देख ई वाला आपका गलत आ रहा है, बिकॉज आई हैव टू राइट इट हियर। सो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, और यहाँ पे डाला ब्रैकेट, और यहाँ मैंने लिखा WELCOME वेलकम, और यहाँ स्लैश, एंड आई कैन राइट, बिकॉज आपका एंटर आएगा तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा इन PYTHON पाइथन क्लास, ठीक है, पाइथन क्लास CLASS, और ये कोट्स मैंने यहाँ पे क्लोज करना है, और ये दैट मीन्स आपका कंटिन्यूएशन में चल रहा है। देखिए आपका आ गया वेलकम इन पाइथन क्लास। सो दैट मीन्स सपोज आपका एक लाइन में नहीं आ रहा, आप सेकंड लाइन में लिख रहे हैं, तो स्लैश लगा लेंगे, तो स्लैश से हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्ट्रिंग वी कैन राइट बाय एडिंग अ बैक स्लैश एट द एंड ऑफ सिंगल लाइन। अगर आप जिन्हें जो वेलकम के बाद स्लैश लगा दिया, तो वो नेक्स्ट जो आप लिखोगे लाइन में वो उस लाइन के साथ ऐड कर देगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द बैक स्लैश एट द एंड टू लाइन अलाउ यू टू कंटिन्यू टाइपिंग टेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन। सो ये हमारे प्रिंट स्टेटमेंट का हुआ, इनपुट का हुआ। नेक्स्ट आपको बता रही हूँ इनपुट में हम कैसे करेंगे ऐड, क्वेश्चंस में जब हमें उसमें करना हो, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट हियर द न्यू, सो हम यहाँ पे कर सकते हैं फाइल, न्यू फाइल, सपोज मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे मैं लिखती हूँ INPUT, इनपुट लिखा, ठीक है। इनपुट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हम इनपुट ऐसे नहीं करते, हम यहाँ करते हैं N, 2 नंबर के एडिशन में। देखिए क्या चेंज कर रही हूँ, इनपुट में मैंने दिया यहाँ पे इनपुट GIVE गिव नंबर, ठीक है, इनपुट गिव नंबर, और गिव नंबर को मुझे प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है तो मुझे इसको देना है कोट्स में। यहाँ पे मैंने नंबर दिया, और ये कोट्स, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर, 2 का एडिशन लिया मैंने, ठीक है। सेकंड में मैं लिख रही हूँ यहाँ पे M इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट ब्रैकेट में गिव अनदर नंबर, दैट इज फर्स्ट और सेकंड नंबर, आई कैन गिव इट हियर, ठीक है। और इसके बाद हम दे रहे हैं S और सम, जो भी लिखे आप, सम इज इक्वल टू N प्लस M, N प्लस M,
ठीक है, या मैं डायरेक्टली प्रिंट भी सम भी प्रिंट कर सकती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्रिंट, PRINT प्रिंट। अब यहाँ देखिए आपने लिखा सम। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सेव, फाइल सेव। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ ऐड एफ, फर्स्ट प्रोग्राम ऐड एफ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब हम इसको करते हैं रन, रन मॉड्यूल। ठीक है, एक मिनट, इसको हम क्रॉस करके फिर रन करते हैं। ओके, अब हम रन करते हैं रन मॉड्यूल। नाउ यू सी गिव नंबर, यहाँ मैंने दिया 78। ओके, और नेक्स्ट नंबर दे रही हूँ मैं 89। ठीक है, आपका नंबर तो ऐड नहीं कर रहा है बिकॉज दोनों आपके स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट विल बी 7889। दोबारा रन करते हैं हम। सपोज हमने रन यहाँ पे दोबारा किया, रन मॉड्यूल, एंड आई कैन राइट द नंबर 10। ओके, another number I can give you 10. Now see the result 101. I have written the one only. Okay, so this is what I have to change it here. So what I need to do, I can write here int int and n plus m, or we can write the float. Let me see what will happen if I do this. I have to use the function. देखिए, फर्स्ट मैंने लिया इनपुट, बाय डिफॉल्ट आपका लेता है वो स्ट्रिंग। ठीक है, सेकंड हमने लिया m, और मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या। हमने नंबर डाला 8, नेक्स्ट नंबर डाला 9, द रिजल्ट विल बी 89। वाई इट इज नॉट टेकिंग सम में हमने क्या किया, प्रिंट सम को इंटीजर n प्लस m को किया, उसमें n प्लस m करने के बाद वो इंटीजर में ले रहा है। अब मैं इसको यहाँ प्रिंट करती हूँ, यहाँ पे PRINT प्रिंट, और यहाँ पे लिया मैंने अब हम यहाँ चेंज करते हैं, रुकिए, आपका यहाँ इंटीजर की बताया, हम यहाँ चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ n इज इक्वल टू, बिकॉज हमें लेना है INT ब्रैकेट और ये वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं ले लेती हूँ INT और यहाँ पे मैंने लिया दिस वन। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को मैंने इंटीजर में इनपुट कराया। सम इज इक्वल टू मैंने लिख दिया n प्लस m। ठीक है, और प्रिंट सम प्रिंट कराया मैंने। आई कैन सेव इट एंड सी द रन। यहाँ पे मैंने लिया 7। ठीक है, नेक्स्ट लिया 9। वी कैन सी द रिजल्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंट आपको इनपुट में इंट करा दिया। अब मैं यहीं पर अगर मैं करती हूँ यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू 78। ओके, आई कैन राइट b इज इक्वल टू 89। ओके, एंड आई कैन राइट, अगर मैं देती हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, और c को हमने प्रिंट करा दिया, यू कैन सी। ठीक है, शेल मोड में आपने किया तो आपने सीधा जो वैल्यू दी आपने, बट जब इनपुट में ले रहे हो आप गिव नंबर को, तो वो आपको स्ट्रिंग में ले रहा है। ओके, और हम चेंज करा सकते हैं इसको। आई कैन डू इट हियर, जब मैं इसको यहाँ रन कर रहे हैं, रन मॉड्यूल। ठीक है, गिव नंबर 6790। सो यू कैन सी द रिजल्ट, दैट इज 150। तो इंट आपका यूज किया हमने, इंट फंक्शन। ठीक है, इंट से आपका क्या होगा, जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं बाय डिफॉल्ट, वो जो लेती है स्ट्रिंग में, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंट में। ठीक है, अब एक नया क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। सपोज यहाँ पे हम लेते हैं आपका गिव एज, आपकी एज। ठीक है, अब आपकी एज को हम ले रहे हैं, जो भी एज है पर्सन की, 15 या 10 ईयर्स बाद उसकी एज क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, एज ले ली हमने, प्रिंट करा लिया इनपुट में। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे मैं लिखूंगी एफ एज, फ्यूचर एज या आफ्टर 10 ईयर एज, आफ्टर 10 ईयर एज इज इक्वल टू, हमने दिया n प्लस 10। इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट डबल कोट्स में एज आफ्टर 10 YEARS,
आफ्टर 10 years, इसको हम देंगे कोट्स में, ठीक है। कोट्स में हमें क्या देना पड़ेगा फिर, कॉमा, ओके। कॉमा के बाद मैंने लिखा FAGE, ठीक है। अब मैंने इसको किया कंट्रोल S एंड वी कैन सी द रिजल्ट। एज दिया हमने, लिखा यहाँ पे 116, तो आफ्टर 10 ईयर द एज विल बी 26। बट अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ प्लस का साइन, बिकॉज प्लस साइन को हम एज एन ऑपरेटर तो यूज करते ही, आप उसमें प्लस साइन को हम कॉन्कैटिनेशन में भी यूज कर रहे हैं। तो व्हाट विल हैपन देन, व्हाट इज द रिजल्ट इज राइट, वी जस्ट चेक इट। यहाँ मैंने दिया 17 एज एंड सी, देखिए एरर आ गया, क्यों, क्योंकि कैन ओनली कॉन्कनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, तो ये आपका क्या कर रहा है, एरर हो जाएगी। तो व्हाट आई हैव टू डू हियर, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको या तो मैं प्लस का साइन लगाऊं, और या फिर मुझे इसमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा STR, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया दिस एज। सो वी जस्ट चेक क्या होता है, कंट्रोल S एंड वी विल चेक इट नाउ व्हाट विल हैपन। रन मॉड्यूल, एज मैंने लिख दी 17, अब देखिए एज आ गई आपको, ठीक है। तो आपको दो फंक्शन समझ में आया, पहले मैंने इंट फंक्शन बताया, दूसरा मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शन बताया, आइडेंटिफायर हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको कि इनपुट एज आपको, तो किस तरह से आपको एज को प्रिंट कराना है उसमें, ठीक है। इसी में आपको एक प्रिंट फंक्शन का एक और क्वेश्चन बता सकती हो। अगर आपने यहाँ पे लिखा गिव नेम, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया गिव नेम या इनपुट व्हाट इज योर नेम, आई कैन राइट इट इनपुट नेम, आपका नेम लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपके नेम को, ठीक है, इसको हटा देते हैं, योर नेम, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ से, और यहाँ लिखते हैं नेम, एन लिया ना हमने, एन लिया, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट एन मल्टीप्लाई 3, ठीक है। नाम लिया मैंने और उसको मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा, प्लस तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखते हैं उसी क्वेश्चन में क्या होता है, तो यू कैन सी मैंने नेम लिया यहाँ पे PYTHON पाइथन, ठीक है। क्या दे रहा है आपका, एड F, मैंने किस में लिया, उसमें इंट किया, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट, यहाँ से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, दिस वन, ठीक है, ये हटेगा आपका। क्यों, क्योंकि नेम आपका किस में होता है, कैरेक्टर्स में होता है, तो वो हमें नहीं लेना है। सो इनपुट, और यहाँ से हमें ये कैरेक्टर हटाना है, तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी, इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है। और ये यहाँ से हटा दिया मैंने, कंट्रोल S, और अब इसको मैं रन करूँगी, रन मॉड्यूल, इसको हम हटा देते हैं पहले, दोबारा रन करते हैं इसको, ओके। अब हम इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, तो रन में आप देखिए क्या होता है, गिव नेम PYTHON पाइथन लिया मैंने, स्ट्रिंग है आपका, और इस स्ट्रिंग को देखिए आपका क्या कर रहा है, 3 टाइम्स, अगर मैं लिखूंगी 10 तो वो 10 टाइम्स इट विल बी रिपीटेड। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, अगर हम प्लस का साइन उसमें करते हैं तो वो कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, दैट इज उसको ऐड कर रहा है। बट इफ आई गिव द मल्टीप्लिकेशन साइन, तो आपका क्या करेगा, वो उतने टाइम्स उसको प्रिंट करेगा, इफ यू यूज मल्टीप्लिकेशन साइन विद द प्रिंट स्टेटमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम इसमें कौन कौन सी, क्या आप कौन कौन सा कर सकते हैं, एडिशन ऑफ नंबर आपको बता दिया मैंने किस तरह से लिखना है, स्ट्रिंग कैसे इनपुट कराना है, इंटीजर वैल्यू कैसे इनपुट करानी है। एक बार अगर हम फ्लोट और उसमें प्लस करते हैं तो वो भी आप देख लेते हैं, उसका रिजल्ट फ्लोट में आता है, और वी कैन राइट। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ इसमें इनपुट गिव नंबर ले रही हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट गिव नंबर, NO नंबर लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया गिव नंबर, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ m इज इक्वल टू इनपुट, और यहाँ लगा के मैंने लिखा गिव नंबर, ठीक है, अनदर नंबर या नंबर 2, यहाँ नंबर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने गिव नंबर लिया और नंबर 2 लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, मुझे प्रिंट PRINT प्रिंट लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, प्रिंट किसको करना है, मुझे प्लस करना है, प्लस क्या है, नंबर में है,
तो अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, सपोज ये नहीं लिखती हूँ पहले, और मैंने लिखा प्रिंट एम, एम है ना, एम प्लस एन, प्लस है तो दोनों में से कोई भी साइन हम पहले ले सकते हैं, कंट्रोल एस, और मैं इसको रन कर रही हूँ। देखिए क्या, यहाँ डाला मैंने 8 और दूसरा नंबर डाला 9, तो आपका अगेन वही हो गया, क्योंकि मैंने 9 8 किया तो 98 आ गया, तो इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर मैं यहाँ पे लिख रही थी मैं int int m, ठीक है, दोनों में नहीं होगा, यहाँ पे किया मैंने int m और प्लस मैं इसको कर रही हूँ int int n, n तो मैंने लिखा ही हुआ है, और मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ n। दैट मीन्स आपने जो वैल्यू ली थी स्ट्रिंग में, उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस में, इंट में। तो अब हम रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे मैंने नंबर दिया 9 और फिर दिया मैंने 8, तो आंसर आपका 17 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ print प्रिंट और लिखा मैंने int int और यहाँ लिख रही हूँ मैं m प्लस n, तो क्या ये लेता है, ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम देते हैं रन मॉड्यूल, मैंने नंबर दिया 5 6, आपका आंसर आ रहा है, देखिए 5 6 11 और वो 6 11, क्यों, क्योंकि आपका फंक्शन पहले उसको ऐड करता है वो, और फिर उसको उसमें दिखा रहा है वैल्यू में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ आपकी वेट, अगर मैंने यहाँ पे वेट नहीं कर रही, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ o इज इक्वल टू इंट m प्लस n, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ print प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे o, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे वैल्यू में, रन कराते हैं, देन सी व्हाट विल हैपन, रन मॉड्यूल, ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया 6 एंटर 8, यू कैन सी 14 और 80 आ रहे हैं, इसको हटा के दोबारा बताते हैं हम, रन और मॉड्यूल में लिया मैंने, यहाँ दिया मैंने 6 और यहाँ लिया 8, ठीक है, देखिए आपका 86 आ रहा है। बट अगर मैं दूंगी TYPE टाइप, तो पहले ओ को प्रिंट करा लेती हूँ मैं, ओ 86, नाउ आई कैन गिव द टाइप, और मैं यहाँ पे देती हूँ ओ, देखिए आपका इंटीजर आ रहा है, लेकिन वो प्लस करने के बाद कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंट m और प्लस इंट n, अदरवाइज क्या ले लेगा वो, दोनों को ऐड करने के बाद वो चेंज करेगा, और ऐड हमारा किसके लेता है, एज ए स्ट्रिंग लेता है, इसके बाद वो उसको कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में। सो आई होप ऑल यू अंडरस्टूड दिस व्हाट वी हैव डन टुडे। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फर्दर। इसके लिए आप क्वेश्चंस करके देख सकते हैं असाइनमेंट में, आपको कैलकुलेशन किसी भी पार्ट की कीजिए, आप एडिशन आप कीजिए, स्ट्रिंग और फ्लोट का एडिशन आप कर लीजिए उसमें, ठीक है। सिंगल कोट्स मैंने आपको बता दिया किसके लिए यूज़ करते हैं, मल्टीपल और डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स ऑल्सो वी कैन यूज़। हैशटैग मैंने आपको बता दिया प्रोग्राम में कमेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I hope you understood, and we continue next video mein we will do the another program. Thank you very much. Bye. Have a nice day. God bless.